Good afternoon everyone. Myself Shiny Das. Welcome to News Moment. Manipur violence is more than 100 days. Schools and colleges are closed. There are several impacts on school and college going students. In Northeast India, mother is the head of the family in most of the Adivasi groups. And so it has different impacts on male and female school and college students. Thus, we have organized a debate based on the topic Manipur violence and its impact on students. Today we have Dr. Arun Pandey, HRD of Hindi Department of BD College, Kapuli Ghosh from BJP, Saiful Islam, Raniganj Urdu High School, Sabira Hena, Urdu Department, question paper. Today's first question is to Kapuli Ghosh from BJP. What is the impact on school-going students? নমস্কার, আমি কাকলি ঘোষ, বিজেপির পক্ষ থেকে আজকে নিউজ মোমেন্ট চ্যানেলের প্রত্যেককে জানাই আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ আমাকে এখানে বলার জন্য। এত সুন্দর একটা টপিক নিয়ে আলোচনা হচ্ছে আজকে। তবে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি যখন পশ্চিমবাংলায় আজকে আমাদের 9ই আগস্টের পর থেকে পুরো পশ্চিমবাংলা তোলপাড় হয়ে চলেছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা নিয়ে। সেখানে আজকে আমরা মণিপুর নিয়ে আলোচনায় বসেছি। হ্যাঁ, ইম্প্যাক্ট তো অবশ্যই পড়েছে। আমরা যে টপিক নিয়ে আলোচনা করছিলাম এখানে আসার পর থেকে সেটা হচ্ছিল যে করোনার সময় যেমনভাবে আমাদের প্রত্যেকটা ছোট থেকে একদম হায়ার লেভেল পর্যন্ত প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে একটা খুব কঠিন পিরিয়ডের মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছিল। তখন প্রত্যেকে বাড়িতে ছিল, বসেছিল, পড়াশোনার লেভেল অনেক নিম্নমানের হয়ে গেছিল। সেটা হচ্ছে একটা পার্ট, অন্য সাইডের একটা মহামারীর উপদ্রব, একটা মহামারীতে পুরো বিশ্ব শুদ্ধ সংক্রামিত হয়েছিল। তাতে প্রত্যেকে আমরা এফেক্টেড হয়েছিল, শুধু ছাত্রছাত্রীরা। কিন্তু এখন মণিপুরের ঘটনাটা সিম্পলি একদম একটা আলাদা টপিক। আর যদি মণিপুর নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই তাহলে কিন্তু তার ভৌগোলিক বিবরণটা এবং তার ইতিহাসটাকে আমাদেরকে জানতে হবে। কেন, কিসের জন্য, কোথা থেকে এই যে একটা এত বড় আগুনে জ্বলছে মণিপুর, তার কারণটা কি, তার রুটটা কোথায়। আর সেই রুট খুঁজতে গেলে আমাদেরকে অনেক পিছনে যেতে হবে। তাই আজকে তার ইম্প্যাক্টটা শুধুমাত্র মণিপুর নিয়ে না। আজকে আমি যদি যেই পশ্চিমবাংলার আসানসোলে বসে আজকে আমি আলোচনা করছি, সেই আসানসোল তথা পশ্চিম বাংলা জ্বলছে। আমরা ভেরি রিসেন্ট 9ই আগস্ট আমরা জানতে পেরেছি আমাদের একটা তরতাজা প্রাণ, আমার ঘরের একটা ছেলে, আমার এখানে যে সঞ্চালনা করছেন আমার কন্যা সম আমার এক বোন, মেয়ে, সে কিন্তু আমার কন্যার মতোই একদম। আমার মেয়ের থেকে সম্ভবত 10 বছরের ছোট হবে। আমার মেয়ের বয়স 27 বছর। সে এখন পিএইচডি করছে অ্যাস্ট্রোনমির উপর। কথা হচ্ছে যে সেও তো প্রত্যেকে আসে স্বপ্ন নিয়ে একটা জায়গায় পড়াশোনা করতে, তার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে। সেই তরতাজা প্রাণ কিসের জন্য একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে চলে গেল, আর সেখানে বসে আজকে আমরা এইভাবে মণিপুর নিয়ে এখনো পর্যন্ত কি ইম্প্যাক্ট করছে সেটা নিয়ে আলোচনা করছি। খুব দুঃখ লাগছে যে মণিপুরের ইম্প্যাক্ট শুধুমাত্র মণিপুরকেই বিধ্বস্ত করছে তাই নয়, ছাত্র জীবনকে বিধ্বস্ত করছে তাই নয়, সেখানে প্রত্যেকটা জায়গায় পরিবার থেকে, রাজনৈতিক জীবন থেকে, সাংসারিক মানে যেখানে চাকরিগত যারা ওখানে চাকরি করতে গেছে, যারা পড়তে গেছে, বাইরের স্টুডেন্ট প্রত্যেকে বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। আমরা সেটাকে নিয়ে চিন্তা করবো, একসময় বলবো যে হ্যাঁ সেখানে প্রত্যেকটা মানুষ বিধ্বস্ত হয়ে রয়েছে, আগুন জ্বলছে, সেই আগুনকে নেবানোর চেষ্টায় সবাই সচেষ্ট হয়েছে। কিন্তু পাশাপাশি পশ্চিমবাংলাকে ভুলে গেলে চলবে না। পশ্চিমবাংলার যে তরতাজা প্রাণটা চলে গেল, তার জন্য কে দায়ী, কার অঙ্গুলি হেলনে, কিসের জন্য? 500 মিটারের মধ্যে পুলিশ স্টেশন, যাদবপুর ওসি রয়েছে, তিনি কি কিছুই জানতেন না? তিনি কি কিছুই জানতেন না এই ছাত্র জীবনকে যে এত বড়ভাবে বিসর্জন দিতে হলো? একটা তরতাজা প্রাণ, একটা মায়ের, সেটা ছেড়ে দিন, আমি বাদ দিলাম,
যেই ছাত্র জীবন নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করতে বসেছি, সেই ছাত্র জীবনটা চলে গেল অকালে। সে জানতেই পারলো না যে কিসের জন্য পড়তে এসেছিল, সে মারা গেল কেন কি র্যাগিংয়ের জন্য। তারপরেও আসি পশ্চিমবাংলার বুকে বসে যখন আমরা ছাত্র জীবন নিয়ে আলোচনা করছি, আজকে এসএসসির এত স্টুডেন্ট যারা পরীক্ষায় পাশ করে এসএসসির জন্য পরীক্ষা দিতে গেছিল, পরীক্ষায় পাশ করে মেধা তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও সেই ছাত্রছাত্রীরা আজকে 2 বছর ধরে কন্টিনিউ রোদ গরম বৃষ্টি 42-45 ডিগ্রি টেম্পারেচারে মা বোন ছাড়িয়ে দিয়ে সবাইকে বাড়িতে ফেলে রেখে দিয়ে তারা বসে আছে দিনের কোনো করবে। Our next question is to Dr. Arun Pandey, HOD of Hindi Department of BD College. What is the impact on college-going students? In Manipur, specifically. नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण पांडे, लीड मूवमेंट के सभी साथियों को अभिनंदन इतने अच्छे टॉपिक के लिए कि मणिपुर में पिछले 100 दिन से भी ज़्यादा समय से जो मणिपुर जल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर जनजीवन के बारे में कोई भी सटीक जानकारी न ही प्रशासनिक तौर पर और न ही और किसी सोर्स से जो वहाँ की घटना घट रही है वो नहीं मिल रहा। ये घटना शुरू हुई है 3 मई से। 4 मई को वहाँ पर एक विशाल घटना घटती है। 2 युवतियों को नंगा करके पैरेड किया जाता है। अब ये तो एक मीडिया बाद में लगभग 56 दिन के बाद में ये लूक मैंने सोशल मीडिया के द्वारा, नेट बंद था, सोशल मीडिया के द्वारा ये सामने आता है। जब मुख्यमंत्री से ये बात पूछी जाती है, अपराध वहाँ है। एक घटना, वो तो उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग पूरी घटना को देख लें, जम्मू के कठुआ में हम लोग देख लें, राजस्थान में हम लोग देख लें, मध्य प्रदेश में हम लोग देख लें, ये मणिपुर की जो घटना है, ये सिर्फ एक मणिपुर की घटना नहीं है। और मणिपुर की घटना सिर्फ वो नंगा करके घुमा देना, ये तो अपराध है, लेकिन उससे बड़ा अपराध है मुख्यमंत्री का ये कहना कि इस तरह के 100 से भी ज्यादा वारदात हुए हैं, आपको एक वीडियो मिल गया तो आप लोग चिल्लाना शुरू कर दिए। इसके बाद भी वो प्रशासनिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति बैठा हुआ है। ये हमारे देश के लिए शर्म की बात है। और मोदी जी कहते हैं कि वहां पर शांति अमन आ चुका है, लेकिन आज भी पिछले परसों वहां हत्या हुई है, हत्याएं चल रही है। और स्कूल कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे थे, ये तो मैंने एकदम ये घोषित है, भाजपा हो या तृणमूल हो, ये तो अनपढ़ बनाए रखने के लिए, ताकि अगर अनपढ़ नहीं बनेंगे तो हमारी भीड़ में शामिल नहीं होंगे। प्रश्न करना पाप है। और जो हुलिगन्स तैयार हुआ है, भीड़वाद, भीड़तंत्र, भूलिए मत, मणिपुर की घटना भले ही मई में घटी हो, लेकिन इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। 14 में आने के बाद जिस तरह से लॉन्चिंग शुरू हुआ था मॉब के द्वारा, ये मॉब लिंचिंग ही आज वहां पर सबसे बड़ी आश्चर्य की बात। 2002 का दंगा आपको याद होगा, गुजरात का। उस दंगे में महिलाएं लूटपाट कर रही थी। दंगा का दूसरा मैंने हाई नजरिया वहां पर देखने को मिला था। ठीक उसी तरह का जब महिलाओं को, एक तो जो वीडियो आया है वो वीडियो के अतिरिक्त जो वीडियो है, महिला लड़कियों की नंगा करके जो हत्या की जा रही है, उसमें औरतें शामिल हैं, औरतें खड़ी हो रही हैं। ये किस ओर हम जा रहे हैं? देश विकास कर रहा है, निश्चित तौर पर विकास करे, लेकिन ये कौन सा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है? और इस माहौल में बच्चों में पढ़ने की जरा सी भी, कुछ एक बच्चे सीरियस हैं, जो मणिपुर के बच्चे दिल्ली में पढ़ रहे हैं वो मणिपुर को लेकर के चिंतित है क्योंकि वो सीरियस है, लेकिन मणिपुर में रहने वाले लोगों को वहाँ पर अफीम की खेती होती है और वो सरकार द्वारा प्रायोजित है। और उस अफीम की खेती को कब्जा करने के लिए बीजेपी ने 2017 में टीएमसी के एक एमएलए को खरीदकर और तमाम विरोधी या निर्दल उम्मीदवारों को खरीदकर वहाँ पर सत्ता में आए थे। उसके पहले बीजेपी का कोई जनाधार वहाँ नहीं था। तमाम एमएलए को खरीद के सत्ता में बनना ही इनका मूल लक्ष्य है। नौजवानों को अमीर अफीम में ढकेल कर, इतने अत्याधुनिक हथियार, सरकार कुछ नहीं, सैकड़ों की तादाद में एफआईआर होते हैं थाना में, लेकिन पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं। और वो जो बंदा, जहां तक मुझे सुनने में आया है, वो जो लड़की को पकड़ के गया था वो तो आरएसएस का आदमी है, गिरफ्तारी हो रही है।
लेकिन नाम मात्र की गिरफ्तारी हो रही है, पूरे मॉब की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और मणिपुर की घटना, राजस्थान में भी घटना घट रही है, उत्तर प्रदेश में घटना घट रही है, मध्य प्रदेश में घटना घट रही है, लेकिन उस घटना और मणिपुर की घटना में जो अंतर है, उत्तर प्रदेश की घटना में चाहे वो सेंगर हो, चाहे वो अभी ब्रिजभूषण हो, उसको बचाने के लिए सरकार पूरी तौर से लग जाती है। मणिपुर में अपराधियों को बचाने के लिए सरकार पूरी तरह से लग जाती है। बंगाल में मालदा में महिलाओं को नंगा करके पीटा जाता है, उसको बचाने के लिए सरकार पूरी तरह से लग जाती है। एक अपराध होना तो बहुत बड़ी बात है, एक अपराध होना ही अपने आप में एक जघन्य काम है, लेकिन उससे भी जघन्य काम है प्रशासन का उस अपराध के पक्ष में अपराधी के साथ में खड़ा होना। इसलिए मणिपुर में जो छात्रों की अवस्था है, कॉलेज स्कूल तो बंद है, पढ़ेंगे क्या छात्र, उनके हाथों में बंदूक है, अफीम है उनके पास में। एक ऐसे नौजवान पीढ़ी को हम लोग तैयार कर रहे हैं 21वीं सदी के एक चौथाई पार करने के क्रम में। हम लोग मैंने देश क्या आज़ाद हो, देश क्या हम लोग अमृत महोत्सव में चल रहे हैं कि अराजकता चारों तरफ है, मणिपुर जल रहा है। ये मणिपुर एकमात्र अभी एक प्रतीक के रूप में हमारे सामने में है, पूरा नॉर्थ ईस्ट जल रहा है। प्रशासन असम राइफल्स के साथ मणिपुर पुलिस की झगड़ा हो रहा है। ये कौन सा, ये तो दल नहीं है, ये तो जाति नहीं है, ये कुकी नहीं है, ये मैती नहीं है, पुलिस आपस में लड़ रही है, क्योंकि उनको वहां पर असम में बीजेपी, मणिपुर में बीजेपी, मेघालय में बीजेपी आ जाएगा, त्रिपुरा में बीजेपी है, पूरा नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जो प्राकृतिक सौंदर्य है, प्राकृतिक संपदा है, पाम की खेती वहां होती है। अपने बंधु को मोदी जी वहां पर पाम तेल का कारखाना लगाने के लिए मणिपुर को एकदम खाली करना जरूरी है, और यही मूल उद्देश्य है। ये सब तो अब मैंने एक घटना का उपलक्ष्य है, इस उपलक्ष्य के बाद लक्ष्य कुछ और है, इसीलिए हम लोग को सतर्क रहना होगा। और ये जो भाजपा का जो एजेंडा है, तृणमूल का जो एजेंडा है, ये दोनों सगी भाई बहन हैं, इन लोगों से हम लोग को सतर्क रहने की आवश्यकता है। Next question is to Dr. Savera. Our next question is to Dr. Savera Henna of the Department of TTP College in Raniganj. What is the impact on female students? मैं सावेरा हैना और मैं अभी फ़िलहाल पश्चिम बर्धमान लोकल कंप्लेंट कमेटी की चेयरपर्सन भी हूँ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की, और उर्दू विभाग की प्रोफेसर भी हूँ TTP कॉलेज रानीगंज में। मुझे अभी हिंदी डिपार्टमेंट के जो सर अभी जो कह रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत ही मतलब कि बहुत ही कायदे से, बहुत ही मुदल्लल अंदाज में उन्होंने अपनी बात रखी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये सिर्फ मणिपुर ही नहीं, पूरे देश का भी जो वातावरण है, जो माहौल है, उसमें जहाँ से इसकी शुरुआत हुई है और जो अभी चल रहा है, हम लोग बिल्कुल इनटॉलरेंस के शिकार हैं। बहुत ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त बातें हो रही है, बर्दाश्त की क्षमता खत्म हो गई है, बर्दाश्त की सलाहियत ख़त्म हो गई है, और कहीं ना कहीं सरकार जो है हमें उस तरफ ढकेले जा रही है। मतलब आम लोग उसके हाथों में खिलौना बने हुए हैं। अब मणिपुर को ही ले लीजिए, डबल इंजन की सरकार है वहाँ पे। मतलब हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बीजेपी की है, और वहाँ लोकल गवर्नमेंट भी बीजेपी की है, फिर भी वहाँ पे संभाले नहीं समझ रहा है हिंसा। वहाँ पे कुकी और माइती जो दो अलग अलग जो जनजाति है, जो अलग अलग लोग हैं, वहाँ पे SC ST का भी मसला है, उनको एक दर्जा मिलना चाहिए। वो लोग 53% है, कुकी वाले 43% हैं, और उसके लिए लेके लड़ाई हो रही है। कुकीज़ जो है वो पहाड़ों में बसी हुई है, ये लोग इधर हैं, उनको ST का दर्जा मिला है, इनको नहीं मिला है। तो ये अलग से जो हिंसा की जड़ें हैं वो तो कहीं ना कहीं हैं, लेकिन उसमें जो अभी एक बात हुई सामने निकल के आई कि जो पूरे जो कुदरती वसाइल हैं उन पर कब्ज़ा, ये जो कब्ज़ा करने की जो नीति है उसकी वजह से लोगों को आग में झोंका जा रहा है। और बहुत ही शर्मनाक बात है कि इन सब की शिकार औरतें होती हैं इस दौर में, 21st सेंचुरी में, जबकि कहा जाता है 21वीं सदी है, महिलाओं को कहाँ से कहाँ ले जाया गया और हर हक मिला हुआ है, लेकिन हकूक़ मिले कहाँ हैं? इधर हमने उनको हक दे दिया है, उनको मुखिया बना दिया है। हमने सुना है कि कुकी जाति में जो है वो मुखिया लोग हैं, मतलब औरतें मुखिया होती हैं, लेकिन उन मुखियाओं का क्या हाल हो रहा है, उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है? हम उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं दे रहे हैं, बराबरी से ऊपर उठी हुई है, तब ये हाल है कि आज शोषण भी उन्हीं का हो रहा है। उनको नंगा परेड कराया जा रहा है, शर्मनाक है। हम लोग इंसानियत की हद से बिल्कुल नीचे गिरे हुए हैं। जानवर भी ऐसा नहीं करते हैं जो हम लोग कर रहे हैं, जो हम इंसान होकर कर रहे हैं। तो इसका जो असर है, जो सोशल मीडिया के जरिए जो तस्वीरें फैली हुई हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, एक तो कॉलेज स्कूल सारे के सारे बंद हैं, कोरोना का मामला अलग
था, उसमें एक दहशत थी कि बाहर निकलेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मर जाएंगे। और इसमें तो एक खौफ, और खौफ के साथ साथ अंदर में जो हिंसा पनप रही है, एक जिसको कहा जाए कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि बाहर निकले और इसको मार दो, इसने ऐसा किया हम उसको जला देंगे, हम इसको ऐसा कर देंगे। ये जो चीज़, ये जो नफरत की खेती हो रही है ना, ये यकीनन हमारे भारतवर्ष के लिए, हमारे भारत के लिए बहुत ही खतरनाक है। वो भारत जिसे एक विशाल भारत कहा जाता है, जिसे हम लोग उर्दू में कहते हैं बर्रे सबीर, सब कॉन्टिनेंट, ये सब कॉन्टिनेंट कहीं ना कहीं विभाजन की ओर बढ़ रहा है, टुकड़े टुकड़े होने के दर पे है। इन्हीं सारे उसूलों की वजह से उसको तो संभालना चाहिए, जिस तरह से उसको समेटना चाहिए, उसको समेटने के बजाय उस पर तरह तरह से आग बरसाती तकरीरें हो रही हैं, आग बरसाती दावे हो रहे हैं। और ये दावे जो है आम लोगों के जहन में फूके जा रहे हैं, उनको अफीम थमाया जा रहा है, उनको पिला दिया जाता है, वोट से पहले उनको 500 रुपये और शराब और ये वो देकर उनको खरीद लिया जाता है। यहाँ तक कि जो MLA जीत के आते हैं उनको भी खरीद लिया जाता है। ये खरीदो फरोख्त, ये पैसे की खेती जब तक होती रहेगी, ये कब्जा करने की नीति जब तक चलती रहेगी, चाहे कुछ हो जाए, काबिज तो हम ही रहेंगे, हम ही सबसे सुपर पावर है, हमको कोई हटा नहीं सकता। ये जो घमंड आ गया है लोगों के दिलों में, और इसकी वजह से जो इस तरह से लोगों को जलाया जा रहा है, झुलसाया जा रहा है, औरतों के साथ जो शर्मनाक बातें हो रही हैं, और बच्चे जो कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज तो बंद जाएंगे कहाँ? तो जो एक तरह से हम जो जिसको कहा जाता है कि हम कहाँ मतलब इस तरह ले जा रहे थे, टेक्नोलॉजी के दौर में हमारा इंडिया आ गया था, और ये टेक्नोलॉजी से कहाँ फिर से पिछड़ के पीछे आ गए कि हम उनको सही से क्लास भी नहीं दे पा रहे, सही से उनको एजुकेशन नहीं फराहम कर पा रहे, सही से उनको अनाज नहीं मिल रहा है, खाने को नहीं मिल रहा, तो हम क्या पढ़ेंगे? सोशल मीडिया ने इतनी तेज़ी से उनके जहनों में जहर भर दिया है, उन सबके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल के जरिए वो देख रहे हैं, और देखने के बाद उनके अंदर फिर गुस्सा उबल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं हमारी जो नई नस्ल जो तैयार हो रही है, जो नई खेप तैयार हो रही है, उसके अंदर हम समझ रहे हैं कि एक अच्छा इंसान बनने की क्षमता कम होती जा रही है, उसकी सलाहियतें कम हो रही है, उसके अंदर बर्दाश्त की ताकत कम हो रही है, उसके अंदर गुस्सा पनप रहा है, उसके अंदर नफरत पनप रहा है, क्योंकि यही दिखाया जा रहा है, यही प्रोजेक्ट कर दिया जा रहा है। आप लोग मीडिया वाले हैं, माफ़ कीजिएगा, लेकिन अभी जो गोदी मीडिया फैली हुई है, अभी जो नफरत की सियासत हो रही है, जिसे हम लोग उर्दू में ज़ाफ़रानी सियासत कह रहे हैं, तो ये जो जाफरानी जो मीडिया है ना, और जो इस तरह की बातें हो रही हैं, सच्चाई नहीं दिखाई जा रही है कि जो आम जनता सोचती क्या है, करती क्या है, किस तरह से करना चाहती है। तो ये अगर आप नहीं दिखाएंगे, अगर सच्चाई नहीं दिखाएंगे लोगों के सामने, तो लोग वही देखेंगे जो दिखाया जा रहा है सबको। तो मीडिया हाउसेस को खरीद लिया गया है, कोई अच्छी चीज़ दिखाई नहीं जा रही है। जहाँ पे जुल्म हो रहा है वहाँ पे जालिम का साथ आप दे रहे हैं। आप अलग अलग, अभी सर ने कहा कि अलग अलग लोगों को बचाने की कोशिशें की जा रही है। सरकार का यही काम है। सरकार हमारे माई बाप होते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। सरकार का मतलब ही होता है कि हमें उन पर भरोसा है, कोर्ट पे भरोसा है, जुडिशियरी, 4 पिलर्स हैं ना भाई, डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स हैं, जिनमें से जुडिशियरी भी है, आपको जर्नलिज्म भी है, और आपको ये डेमोक्रेसी का एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव पहलू भी है, सब कुछ है। कहाँ है? हमको तो लग रहा है कि सारे बिल्कुल अपाहिज हो गए हैं, सारी कुर्सियाँ, सारी टांगें हिल रही हैं सबकी। ये हमारा डेमोक्रेसी में आज 77 वर्ष में हम उधर जाएंगे, कभी सोचा भी नहीं था। फैज़ ने बहुत पहले कहा था, जाला ये सब गुज़ीदा शहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं, इसी का इंतज़ार था। इसी के लिए हम लोगों ने आज़ादी के सपने देखे थे। यही आज़ादी हमें चाहिए थी कि आज हम किस जगह, किस कगार पे आ गए हैं। औरतें कहाँ पस्ती से भी नीचे चली गई हैं, औरतों को जानवर बना दिया गया, उनके साथ रेप किया जा रहा है, बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। क्या है? किस तरह की दुनिया है? किस तरह की सियासत हो रही है? यही सियासत है तो लानत है ऐसी सियासत पर। अगर यही राम राज्य है तो उस पर भी लानत है। राम राज्य बोलना बहुत आसान है, राम के आदर्शों का पालन करना उतना ही मुश्किल है। एक राम, श्री राम, जिन्होंने एक धोबी के कहने पर आवाम के लिए अपनी बीवी से अग्नि परीक्षा ले ली, उनको त्याग दिया, एक वो राम थे। और उन श्री राम का नाम लेकर ये लोग उन श्री राम को डॉन बना कर रख दिया है। उनके नाम पे राम राज्य, राम राज्य, राम राज्य का परिभाषा इन्हें नहीं मालूम है। आज जहाँ बैठे हैं उनके पास पावर है, अगर ये चाहे तो हर तरफ सुकून हो जाए, अगर चाहे तो। लेकिन चाहेंगे क्यों? चाहने से उन्हीं को खतरा है। लोगों पर क्या असर पड़ेगा? बच्चों पर। बच्चों का जहन खराब हो रहा है कि इन बच्चों को हम नहीं दे पा रहे हैं जो इन्हें देना चाहिए। एक अच्छा भविष्य नहीं दे पा रहे, एक अच्छा एजुकेशन नहीं दे पा रहे, एक महफूज जगह नहीं दे पा रहे, एक अच्छा वातावरण नहीं दे पा रहे। बहुत शुक्रिया। Islam, Raniganj Urdu High School. What is the impact on male students? नहीं, देखिए यहाँ जो हम लोग बैठे हुए हैं, ये मेन टॉपिक है मणिपुर के ऊपर। अब मणिपुर के ताल्लुक से वहाँ के स्टूडेंट मेल हो या फीमेल, क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है। अगर मणिपुर के साथ साथ अगर पूरे हिंदुस्तान पर हम नज़र दौड़ाते हैं
तो पूरे हिंदुस्तान का माहौल इन 10 सालों में चेंज हुआ है और अभी ज़्यादा चेंज हुआ है। और चेंज में ज़्यादातर ये देखा जा रहा है कि एक नफ़रत का वातावरण बन रहा है, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, दिलों में नफ़रत पड़ रही है, मोहब्बत का जज्बा उभर ही नहीं रहा है ये। और इससे ही जो है आपस में जो हम लोग पूरे हिंदुस्तान में जिसको हम कहते थे कि सारे जहाँ सच्चा हिंदू सीता हमारा, हम भूल भूले हैं इसकी ये गुल सीता हमारा, कि हमारा जो सब मिल के हमारा कह रहे थे, अब हमारा नहीं है। अब इसमें हमारा हो गया कि मेरा ये है, आपका ये है, मेरा ये आपका ये है। तो इसी वजह से पूरे हिंदुस्तान में, राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, झारखंड हो, नीचे साउथ में भी हो, और अभी मणिपुर में जो ये मामला कई महीनों से चल रहा है, तो ये मणिपुर चल रहा है। और जो सेंट्रल में जो हुकूमत है वो तमाशा बनी हुई है। वज़ीर आज़म साहब को कई महीनों के बाद जब याद आया तो उन्होंने 10 सेकंड का जो अपना स्पीच किया, उनको मालूम नहीं है कहाँ पर किया और उनको सब मालूम है। लेकिन मणिपुर में जितना ज़्यादा ये वातावरण जो फैल रहा था, तो क्या उनको नहीं मालूम है? वो चाहते थे इसको रोक सकते थे। अब इस वजह से जो देखिए, एजुकेशन जो है बैकबोन है किसी भी कंट्री का, जो डेवलपमेंट है उसका बैकबोन है एजुकेशन। और एजुकेशन में जो है मेल एंड फीमेल दोनों एक साथ चलते हैं। पहले ज़माने में मेल ज़्यादा थे, लेकिन अभी जो रेशियो आ रहा है पूरे हिंदुस्तान में या हमारे यहाँ बंगाल में, लड़कियों ज़्यादा पढ़ रहे हैं। और कहा जाता है कि लड़के जब पढ़ते हैं तो सिंगल अपने लिए पढ़ते हैं, लेकिन जब लड़कियां पढ़ती हैं तो पूरे समाज के लिए पढ़ती हैं। पूरे समाज को ठीक करने के लिए महिलाओं का तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है। लेकिन मणिपुर में जब ये हुआ तो सारे कॉलेज बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए। लड़कियों के अंदर तो ऐसे ही डर एक रहता है, चाहे जितने एजुकेटेड हो जाए, लेकिन डर समा रहता है, वो बाई मैंने नेचर है। अब उस माहौल में जब हम कॉलेज को बंद कर दिए, स्कूल को बंद कर दिए, और उसके बाद जो ये बहुत शर्मनाक वाक़या हुआ कि एक लड़की को जो है नंगा करके पूरा घुमाया गया। ये घुमाना क्या है? ये दो बात है। एक तो ये कि हम जाहिर कर रहे हैं कि हमें आपसे नफरत है, ये एक दे रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि महिलाओं की कोई कदर नहीं है, ये एक संदेश दिया जा रहा है। लेकिन महिलाएं जब आगे बढ़ेंगी तो देश तरक्की करेगा, ये तो सभी को जानते हैं। लेकिन मणिपुर की इस वारदात से जो लड़कियों के अंदर खौफ है, जो जज्बा है कि हम अपने बढ़े आगे, हमारा मोहल्ला, हमारा शहर, हमारा मुल्क तरक्की करे, लेकिन इस वजह से उनके जहन में ये डाइवर्ट हो गया। अब उनके अंदर डर पैदा हो गया। स्कूल कॉलेज में जो एजुकेशन हासिल करने के बाद वो अपने देश के लिए, अपने स्टेट के लिए कुछ करना चाहती थे, वो दिमाग में खलल पड़ गया। पीस जब माइंड में नहीं होगा तो आप अच्छा नहीं ज़्यादा सोच सकते, और अपने सिनेरियो में जब बुरा चीज़ को देखेंगे तो वो अच्छाई आपके ध्यान में कम आएगी, बुरा ध्यान आएगा। तो वहाँ की लड़कियाँ गहरी सहमी हुई हैं, और ये हुकूमत को चाहिए कि जल्द से जल्द स्टेप ले और यहाँ पूरे हिंदुस्तान के वातावरण को ठीक करे। और लड़कियों के अंदर डर ये 14 के बाद या 16 के बाद जो हुआ महफूज खुद को नहीं है। वो अभी ऐसी बात हुई कि अगर ट्रेन में एक लड़की जो है अगर डिब्बे में बोगी में अकेले है तो वो डर रही है। क्यों डर रही है? वातावरण ऐसा है, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं हो पा रहा है। कहीं भी लड़कियाँ अकेले जाने से डर रही हैं। तो अगर ये हुकूमत चाहे तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और जब फीमेल एजुकेशन आगे बढ़ेगा तो वो दूर नहीं, जब हमारा हिंदुस्तान भी सारे देश में जितने भी मुल्क है ममालिक उनके साथ बराबर कंधा से कंधा मिलाकर करेगा, और फिर दोबारा हम ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सीता हमारा। थैंक यू। আমি যেটা বলতে চাইছিলাম, আমরা বেঙ্গলকে নিয়ে চেষ্টা করছি না সেটা নয়, আমাদের বলার ব্যাপারটা হচ্ছে যে মণিপুরটাকে নিয়ে এই জন্য আমরা বেশি ডিসকাশন করছি, কেননা এর ইম্প্যাক্টটা পুরো ইন্ডিয়াতে আলাদাভাবে পড়ছে। মণিপুর বা নর্থ ইস্টকে আমরা কি ছেড়ে দিয়েছি ইন্ডিয়া থেকে, বা ইন্ডিয়ার মধ্যেই ওটা আছে? আমি আজকে এখানে আপনি দেখেছিলেন আমাদের আজকে টপিকটা ছিল মণিপুরের স্টুডেন্টদের উপর, কিন্তু আমার সাথে রয়েছেন একটা ম্যাডাম রয়েছেন, পুরোটাই রাজনীতি রিলেটেড একটা কন্ট্রোভার্সারি হয়ে গেল। তো আমি এটা বলতে চাইছি না, আমি বলতে চাইছি স্পেশালি আমাদের স্টুডেন্টের প্রতি কী ইম্প্যাক্ট হয়েছে মণিপুরের ঘটনাটা। উনি বললেন খুব সুন্দর, খুব ভালো লাগলো আমার, যে একটা মহিলা যখন একটু শিক্ষিত হয় পুরো সমাজ শিক্ষিত হয়, তার পরিবার থেকে শিক্ষাটা শুরু হয়, বাচ্চাদের থেকে শুরু হয়।
তার প্রতি কি এফেক্ট পড়লো সেটা নিয়ে আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল। রাজনীতির আলোচনার বিষয় আমাদের না। আমরা চেষ্টা করব মণিপুরের যে ঘটনাটা ঘটেছে, তাহলে আমরা যদি রাজনীতির কথাতেই আসি, 1993 তো 123 দিন জ্বলেছিল মণিপুর। তখন তো সরকার কাদের ছিল, কোথায় ছিল, সেন্ট্রালে কে ছিল, স্টেটে কে ছিল, এইসব প্রশ্ন আসে। আমি প্রথমেই আমার যখন কথাটা বলছিলাম তখন বলেছিলাম মণিপুর নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তার ভৌগোলিক বিবরণ, তার ইতিহাস নিয়ে সবার আগে আলোচনা করতে হবে। ওই মেইকি, কুকির সঙ্গে নাগা কারা কারা ওখানে জড়িত রয়েছে, তার ইতিহাস কি সেটা জানতে হবে। কিন্তু আমরা সেগুলোকে ডাইভার্ট করে গিয়ে আমরা যদি রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করি শিক্ষার্থীদের জায়গায়, সেটা তো সম্পূর্ণ হচ্ছে না আমাদের আলোচনা সভাটা। তাই জন্য আমি বলবো যে আমার মনে হয় যদি আমরা সবাই মিলে এখানে শিক্ষাকে নিয়ে আলোচনা করি আমাদের ভালো হবে। আর রইল আমাদের মণিপুরের কথা। মণিপুরের জায়গাতে আমরা প্রত্যেকে জানি সব কলেজ স্কুল সব বন্ধ হয়ে গেছে। প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট ভীতি, যেটা বলছিলেন উনি, হ্যাঁ সবাই আমাদের মহিলারা বিশেষ করে ভীতির মধ্যেই থাকে সবসময়, সেটা একদমই বন্ধ অবস্থায় রয়েছে এখন। তবু আস্তে আস্তে ওখানকার পরিস্থিতি অনেকটা ভালোর দিকে যাচ্ছে। সবাই আস্তে আস্তে ফিরছে ঘরে, স্কুলগুলো খোলার চেষ্টা হচ্ছে ওখানে, সেগুলো হচ্ছে। পাশাপাশি যদি মণিপুরের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে রাজনীতি আসে, তাহলে মণিপুরের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে পশ্চিমবাংলা আসবে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমরা যখন শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করছি, পশ্চিমবাংলায় চলছে একটা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুরের মতো বিশ্ববিদ্যালয় যেটা নাকি সর্বজন শিক্ষিত, সর্বজন বিদিত, এবং প্রত্যেকটা জায়গায় জানে যে যাদবপুর থেকে এক একটা হিরে বেরিয়েছে। আজকে বিশ্বভারতী কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একটা স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করেছে যে জায়গা বিশ্বভারতী, সেখানে পর্যন্ত আজকে শিক্ষার জায়গায় রাজনীতি ঢুকে গেছে। আজকে এইখানে আমাদের আলোচনা সভাতেও শিক্ষার জায়গায় রাজনীতি ঢুকে গেছে। তাহলে এই বিশ্বভারতীগুলো তো রাজনীতি একদম সমানভাবে কিন্তু আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে। সর্বাগ্যে প্রয়োজন আগে শিক্ষা দপ্তর থেকে রাজনীতিকে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করা। শিক্ষার আঙিনা শুধুমাত্র শিক্ষার জন্যই হবে। আর যদি আমরা মণিপুরকে একদমভাবে সুস্থভাবে আনতে চাই, তাহলে প্রত্যেকের দরকার। আমি বলবো বিজেপি সরকার ভালো, উনি বলবেন কংগ্রেস সরকার ভালো, উনি বলবেন তৃণমূল সরকার ভালো। কোনো সরকারের কথা এখানে আসবে না। এই আলোচনা সবাই শুধুমাত্র একটা কথাই আসবে, মণিপুরের ইম্প্যাক্ট কীভাবে ছাত্রদের জীবনে পড়েছে, ছাত্রীর জীবনে পড়েছে। পশ্চিমবাংলা এখানে চলছে শুধুমাত্র এই রাজনীতির প্রেক্ষাপটে এই শিক্ষার্থীদের উপরে তাদের পুরোটা এমনভাবে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে নিয়েছে, না আছে চাকরি, না আছে ছাত্র। কারণ প্রত্যেকটা বাংলা স্কুল বসে গেছে। ম্যাডাম এখানে রয়েছেন, স্কুলে স্যারও রয়েছেন, জানেন বাংলা মাধ্যমের স্কুল থেকে শুরু করে ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা ছাত্রের জীবনে কীভাবে এফেক্ট পড়েছে। কারণ বাংলা মাধ্যমের যারা স্কুলগুলো বন্ধ হতে বসেছে, তারা ন্যাচারালি তারা কিছু চাক না চাক আমাদের মতন মা বাবারা আমরা চাইবো যে সে একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়াশোনা করুক। একদম কম খরচের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আজকের দিনে নেই। তাহলে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াতে গিয়ে একটা বাবা মাকে কি কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। কিন্তু সেখানে পড়ানোর পরও আমরা যখন নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করছি, আমার ঘরের সন্তান সে মারা যাচ্ছে। তাদেরকে যখন নাকি যদি মারাও বা না যায়, সেখান থেকে যদি না মাত্র তাদেরকে এসএসসি পরীক্ষায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাচ্ছি, সেখানে চাকরি নিয়ে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। কিসের ইম্প্যাক্ট, কী নিয়ে আলোচনা করবো? যখনই আলোচনা করছি সেখানে রাজনীতির আঙিনা আগে চলে আসছে। সুতরাং আমার মনে হয় যে আমাদের প্রত্যেকের উচিত একসঙ্গে একভাবে লড়ে শিক্ষার আঙিনায় রাজনীতিকে একদম আলাদাভাবে, শিক্ষার আঙিনা শুধু শিক্ষার জন্য হোক, আমাদের ঘরের সন্তানরা একটা বড় জায়গায় উঠুক। এবং আমাদের আজকে চন্দ্রযান নিয়ে যেভাবে আজকে আমাদের ভারত থেকে গেছে, এটা কোনো দলীয় না, এটা আমাদের ভারতবর্ষের। আমার ঘরের সন্তান, আমার ম্যাডামের ঘরের সন্তান, আমার স্যারের ঘরের সন্তান, সবাই আমরা চাইবো আমাদের প্রত্যেকের সন্তান শিক্ষিত হয়ে একদম উপরের জায়গায় যাক এবং আমাদের ভারতবর্ষ তথা আমাদের प्रत्येक बाबा मार नाम उज्जवल करो। सर आपसे ये पूछना है कि शिक्षा और राजनीति दोनों को अलग हो नहीं सकता, क्योंकि राजनीति के कारण ही शिक्षा बाधित हो रहा है। जिस राजनीति के कारण वहाँ मणिपुर जल रहा है या जिस राजनीति के कारण जादवपुर यूनिवर्सिटी में घटना घटी है, तो वो
शिक्षा से और राजनीति से दोनों को तो अलग नहीं किया जा सकता। तो इस मामले में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है कि दीदी बोल रही थी, बोलने के क्रम में हमको लगता है थोड़ा सा उस पर और गहराई से विचार करना समझ बेहतर होगा। जब नीति तय करने वाला, एजुकेशन तय करने वाला राजनीति करता हो, तो पढ़ने वाला राजनीति करेगा, ये अन्याय कहाँ से हो गया? अभी मैडम है संग्रह मैडम, अभी 4 ईयर डिग्री कोर्स शुरू हुआ है। इस 4 ईयर डिग्री कोर्स में वो भी जानती होंगी, सिलेबस अभी तक नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस आया है, सेकंड सेमेस्टर का नहीं है। 8 सेमेस्टर तक जाते जाते क्या होगा, 4 साल बच्चा पढ़ेगा। हम उस डिबेट में जाना नहीं चाहते, क्योंकि अभी वो आएगा समय जब ये पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट ये लागू कर सकती है। तो इस पॉलिसी को लेकर के राजनीति अगर छात्र करता है तो कहाँ गया है? छात्र राजनीति करता है कि लाइब्रेरी में हमारी पुस्तकें होनी चाहिए, तो इसको राजनीति कहा जाएगा। हमें रोजगार चाहिए, अभी दीदी कह रही थी, बहुत अच्छा कही थी, रोजगार। लेकिन इंडेक्स क्या कर रहा है भारतवर्ष का? इंडेक्स पूरे सरकारी संस्थान को बेचा जा रहा है। और अगर स्टूडेंट कहे कि बेचा जा रहा है, वहाँ हमको नौकरी मिलना चाहिए था, ये राजनीति नहीं हो सकता। राजनीति का संबंध, अभी तो राजनीति को गंदा माहौल बना दिया गया है। राजनीति का मतलब होता है एक नीति के आधार पर शासन को चलाना। आज न पश्चिम बंगाल में, न पूरे भारतवर्ष में नीति पर आधारित कोई शासन नहीं है। तो एजुकेशन का मामला जहाँ तक है, एजुकेशन संविधान के कॉन्करेंट लिस्ट में है, राज्य लिस्ट में है और सेंट्रल लिस्ट में। कॉन्करेंट लिस्ट में है। राज्य को अपना शिक्षा नियम बनाने का अधिकार है, लेकिन अगर सेंट्रल कोई शिक्षा नियम बनाती है और अगर वो देती है तो राज्य मानने के लिए बाध्य है, ये भी तय है। तो जब शिक्षा पर बात होगी तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के विरुद्ध में बात क्यों नहीं होगी? शिक्षा में जब खामी होगी तो इन दोनों चीज़ों पर क्यों नहीं होगी? जब तमाम जगहों पर, कॉलेजों में, स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में, हॉस्टल में अगर रैगिंग होगा तो क्यों बात नहीं? आज जादवपुर की बात हो रही है, बहुत निश्चित तौर से बहुत अच्छी बात है। लेकिन हैदराबाद यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला को मार दिया गया, उस समय कोई बात नहीं होगी, क्योंकि उस समय स्मृति ईरानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्मृति ईरानी शिक्षा मंत्री थी। ये ड्यूअल कैरेक्टर नहीं चलेगा। अगर प्रतिवाद करना है, मैंने पहले ही कहा, राजस्थान में अगर उस तरह की घटना होती है तो उसका भी प्रतिवाद हमको करना है, दिल्ली में होती है तो उसका भी प्रतिवाद हमको करना है। मूलतः घटना के कैरेक्टर पर हमको प्रतिवाद करना है, और घटना को जो छिपाना चाहे, वो सेंगर हो, वो कौन राम रहीम, ये सब जितने सब बीजेपी के चट्टे बट्टे हैं, वो सारे। और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी वालों को इस पर बोलने का अधिकार कहाँ से मिल जाता है? जब वो गुजरात के गैंग रेप जिसके ऊपर में हुआ, उसके परिवार के 7 लोगों को मार दिया गया, उसके रेपिस्टों को बाहर लेकर के सम्मान दिया जाता है, वीरता का पुरस्कार दिया जाता है, तो उनको बोलने का अधिकार कहाँ मिल जाता है? अगर बोलना है तो सीधे तौर पर सबको लेकर, क्योंकि भारतीय संस्कृति का वाक्य है, यत्र नारी पूज्यन्ते वाला जो पशु समान होता है वो आदमी हो ही नहीं सकता। इसलिए जहाँ भी घटना घट रही है उन तमाम घटनाओं की निंदा होनी चाहिए। इस तरह की जहाँ भी घटनाएं घट रही है, अगर और जितने भी युवतियों के ऊपर में घटे, युवक के ऊपर में हॉस्टल में घटे, सब तो छात्र हैं। तो छात्र समाज को सबसे पहले आगे आना चाहिए। लेकिन मेरुदंडहीन छात्र समाज आज पश्चिम बंगाल में टीएमसीपी के नाम पर, एबीवीपी के नाम पर, पूरे भारतवर्ष में ये लोग इस पर प्रश्न नहीं उठाएंगे, क्योंकि इनको जय श्री राम का नारा लगाना है, मंदिर बनवाना है, निश्चित तौर से बनवाएं, हमको कोई विरोध उसमें नहीं है, बनना चाहिए। लेकिन छात्र होने के नाते उनको पढ़ाई अच्छी से करनी चाहिए, पढ़ाई की सुविधा उनको मिलनी चाहिए। स्कॉलरशिप जो बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट बंद कर देती है, वो स्कॉलरशिप चालू होना चाहिए। स्कॉलरशिप की संख्या जो कम कर दे रही है वो चालू होना चाहिए। अगर इन तमाम बातों पर बात हो तो राजनीति तो आएगी, राजनीति से अलग करके शिक्षा को नहीं किया जा सकता। আমি বারবার করতে চাইছিলাম কথাটাকে। আমরা বারবার আমি একটা কথাই বলছি, শিক্ষার আঙিনায় রাজনীতির আলোচনাটা না করাটাই মনে হয় ভালো। বিজেপির কোথা থেকে আসছে, কংগ্রেসের কোথা থেকে আসছে, সিপিএমের কোথা থেকে আসছে, এইটা আমার মনে হয় পলিসি কে বানাচ্ছে? পলিসি তো বানাচ্ছে গভর্নমেন্ট। আমরা নরেন্দ্র মোদি কি বিজেপি নয়? আজকে তো নরেন্দ্র মোদির কথা বিজেপি নয়, শিক্ষা অমিত শাহ কি বিজেপি নয়? আমার কথা হচ্ছে বিজেপি এখন থেকে আসছে। পার্থ চ্যাটার্জি শিক্ষামন্ত্রী, বিজেপির আগে কি কেউ ছিল না? শিক্ষা কি আগে ছিল না? শিক্ষা কি আগে ছিল না?
শিক্ষা কি ছিল না? আমি এইটাই বলতে চাইছি, যদি তাই হয়, যদি আমরা চাই আমার ঘরের সন্তান শিক্ষিত হোক, আমার ঘরের সন্তান রিসার্চার হোক, তাহলে আমরা প্রত্যেকে মিলে লড়াই করব এই যে করাপশন হচ্ছে তার বিরুদ্ধে। কেন হচ্ছে তার বিরুদ্ধে? জায়গা ছোট হয়ে গেলে, সংখ্যা কমে গেলে, তাহলে আমরা প্রথম দিন থেকে কেন আটকাইনি? আজকে কেন আটকাচ্ছি? না, এই তো 14 পর, প্রথম দিন থেকে মুখটা কেন বন্ধ? কেন 14? তার আগে কেন যায়নি? 14 পর না 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 না, ভুল। আগে যখন নাকি শিক্ষা জবে থেকে আমার জন্ম হয়েছে, আমার বাবা যখন থেকে শিক্ষা পেয়েছে তখন থেকে আমরা জেনেছি শিক্ষা আমাদের যখন বিদ্যাসাগর বেরিয়েছেন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাকে শিক্ষা পাননি, তখন কি শিক্ষা ছিল না? তখন কি শিক্ষা বন্ধ ছিল? এখন এখানে বিজেপি আসার পরে কি তাহলে শিক্ষা পাননি? বিজেপি আসার পরে কি শিক্ষা নীতিটা বদলেছে? আর তার আগে কি কোনো শিক্ষা নীতি ছিল না? लेकिन बात जो बोल रहे हैं कि शिक्षा से राजनीति अलग कभी नहीं था, कभी नहीं होगा। और शिक्षा से राजनीति अलग इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो गवर्नमेंट जो भी सेंट्रल में हो, स्टेट में हो, वही शिक्षा की पॉलिसी को निर्धारित करता है। इससे कभी अलग नहीं हो सकता। हम वो नहीं बोले, हम बोलना चाह रहे हैं जब हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्या टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं, मणिपुर का इम्पैक्ट छात्रा में छात्री हाँ, उसके ऊपर शिक्षा का पॉलिसी बीजेपी की कांग्रेस मणिपुर अगर हम लोग तो सब नहीं, अगर सर बोले कि मणिपुर पे बात कीजिए तो आप टोटली मणिपुर पे बात करना चाहिए। उसमें जादवपुर बार आपके मणिपुर से बोलते ही हम जादवपुर नहीं, जादवपुर आप मणिपुर का नाम ले रही हैं, बड़ी सर आ जा रही है। आप नहीं सुने? आपने सर ने बोला ना रोहित, हम पहले रोहित पे बात कीजिए ना। हम पहले टॉपिक में क्या बोले थे? आप बोले थे आप मणिपुर का नाम ले रही है, जादवपुर पे डिपेंड कर रही है। मणिपुर को बोलना था तो मणिपुर का भौगोलिक डिफरेंस जानना चाहिए। मणिपुर में जो शक्ति है वही शक्ति जादवपुर में है, वही शक्ति हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, सब जगह सब वही पावर है। और इसको पॉलिटिकल मदद मिल रहा है, यही बोलना है। पॉलिटिक्स के बाहर हम लोग पॉलिटिक्स से तो बाहर नहीं हो सकते। हम बोलना चाह रहे हैं हम लोग पॉलिटिक्स के बाहर होके कैसे हम लोग को सुधार लाना पड़ता है, कैसे सुधार लाएंगे वो सोच रखना चाहिए। बीजेपी जैसे ही बैकफुट पर आती है, बीजेपी जैसे ही कटघरे में खड़ा होती है वहां से वो राजनीति को गायब करती है। लेकिन जहाँ बीजेपी उस पर भी एक क्वेश्चन है, मौका मिल जाए वो राजनीति करती है। उस पर भी एक क्वेश्चन है। आप लोगों ने आपने जो सवाल किया मैडम से शुरू हुई बात, हम ये कह रही है मणिपुर में बात कीजिए, ठीक है। इन्होंने मणिपुर का नाम लिया और जादवपुर पे डिबेट किया। डिबेट भी नहीं आपने हम इसी में बात करना चाह रहे हैं। 3 मिनट में 2 मिनट आपका जादवपुर था, 1 मिनट आपका शिक्षा टॉपिक उठा है, अगर आप पॉलिटिक्स को बीच में नहीं लाना चाहिए तो टॉपिक उससे बात करें। लेकिन एजुकेशन कभी भी पॉलिटिक्स से अलग कभी हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता क्योंकि पॉलिटिशियन के द्वारा ही निर्धारित होता है। पॉलिटिक्स नहीं आप मेरी बात कभी पॉलिटिक्स थे, हम वो नहीं बोल रहे। मैं बोलना बात सही है, आप भी अपनी बात सबको मिल के ये जो छात्र छात्रियों के ऊपर जो इफेक्ट हो रहा है उसके ऊपर हम लोगों को कैसे सुधार लाना चाहिए, चाहिए। आप सब लोगों को बोल रहे हैं मिल के करना चाहिए, लेकिन वहाँ सब लोगों का कोई बात ही नहीं उठ रहा। जब भी कभी ऑल पार्टी मीटिंग होता है, सपोज मान लीजिए हम लोग मणिपुर पर ऑल पार्टी को बुलाए यहाँ पर, लेकिन कोई उसके हिसाब से नहीं बोल रहा। मणिपुर पर तो कोई बात नहीं कर रहा, पार्टी के बारे में अपना एजेंडा रख रहा। हम लोग का क्वेश्चन है कि अगर शिक्षा को सुधारना ही है तो देखिए अभी सर जो बोले ना वायलेंस, इनकी गुफ्तगू को बहुत अच्छी लगी, बहुत वायलेंस पे मैं बात। सबसे बड़ी बात कि 100 से ज्यादा दिन हो गया हमारे प्रधानमंत्री आज तक क्यों नहीं गए वहाँ? नहीं, जब 1960 में जब आप पहले इसको देखिए, पहले आप इसको देखिएगा, पहले आप इसको देखिए। आप रोहित के बारे में बात कीजिए। आप क्या बात कर रही हो?
ऐसा आप डेमोक्रेसी की बात नहीं करना जानती। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बात में मिर्ची लगती है। आप टॉपिक को आपको एक चरण आप घुमा दे रही है बात। आप घुमा दे रही है। इनका दोस्त नहीं है। पड़ेगा नहीं। मणिपुर का लेके आइएगा।